discussing basics of Python, and we managed to play with the images little bit, और हमने finally we were applying filters on our images. So अभी जो है today we will discuss little bit of assignment which you will solve over these next coming few days. So this is just a basic assignment. There isn't anything related to projective geometry. We just want to process images, and then once you are done with this assignment, the follow-up assignment is where you will be generating or making a panorama from scratch. So this is just a warm-up exercise to get comfortable with images and filters and saving data. तो पहली तो हमने already discuss कर दी है. I will share a folder with you. उसमें काफ़ी सारे contents होंगे उस folder में, तो you are supposed to read all the JPEG images, resize them to a standard size and save them in a new folder. This will be easy for you. The thing is that LMS is not working over the weekend, so I will try to post this assignment on Teams. You can download files from Teams, right? So the next part is I want you to take two images and plot them. और जो है ना, मुझे हमने एक इमेज के ऊपर एक पॉइंट प्लॉट करके देखा हुआ है अभी. तो अब मैं चाहता हूँ ये व्हाट आई वांट इज कि आप ये दो इमेजेस साइड बाय साइड प्लॉट करें, और एक इमेज में जो चीज़ है उसके पिक्सल कोऑर्डिनेट्स पता चलाएं, लेट्स ईयर ऑफ द डॉग, और दूसरे इमेज में भी उसके पिक्सल कोऑर्डिनेट्स पता चलाएं, एंड देन ड्रॉ लाइन बिटवीन दीज टू. ठीक है ना? तो इधर तो यू कैन सी हेयर यू कैन सी लॉट ऑफ येलो लाइंस, बट यू कैन ड्रॉ 5x. तो इसमें जो आपके लिए चैलेंज होगा वो ये होगा कि आपको लाइन ड्रॉ करनी आनी चाहिए इमेज के ऊपर, और वो पिक्सल कोऑर्डिनेट्स पता करने आने चाहिए. तो यू कैन यूज एनी अदर टूल टू फाइंड दीज पिक्सल्स. ये आप पेंट यूज कर लें. So you don't need to do that programming. What I want is just the end product. कि दो इमेजेस प्लॉट हों और हम एक्स वाई पोजीशन हमने बताई हो कि पहले इमेज में चीज़ यहाँ पे है, दूसरे में उनके दरमियान एक लाइन ड्रॉ हो जाए. ठीक है? तो representation which we use a lot of times in robotics, especially in tracking. So this is a fun exercise. So the question in the class is, do we need to find the matching points automatically? No, we are not doing any processing with images. We will know the coordinates and we just want to plot the result. So these are two separate images. So you will load two separate images. आप बताएंगे पहले इमेज में चीज़ यहाँ पे है, दूसरे इमेज में यहाँ पे है, और फिर उन दोनों के दरमियान लाइन ड्रॉ करनी है. So this is just a plotting exercise. Sure. This is another interesting representation which we use in image processing, especially in 3D modeling. So we last time applied a smoothing or blurring filter on the image. तो अभी आप ये करेंगे कि कोई एक इमेज ले लें and then apply filter, same filter, blurring filter, by changing the values of the sigma. ठीक है? Select any 4-5 values. So then downsample that image, ये जो आखिरी image होगा, and then again repeat this process. Use other values of sigma. ठीक है? And again downsample that image and then finally plot this thing. इसमें ये ग्रीन और ब्लू लाइंस आप ना प्लॉट करें, बट ये इमेजेस इस तरह प्लॉट होने चाहिए.
कि पहले पहले ओरिजिनल इमेज आ गया आपके पास, फिर आपने उसको फिल्टर करके ब्लर करके प्लॉट कर दिया। जी, फिर ये डाउन सैंपल करके भी, लेकिन सिग्मा तो वही 4-5 लेने हैं ना हमने। नहीं फिर चेंज हो जाएंगे ना सिग्मा। अच्छा। एक मिनट में, जो आपका क्वेश्चन है ना मैं ड्रॉ करके आपको बता देता हूँ। ये आपका इमेज है और ये नज़र आ रही है पेंट की स्क्रीन। यस सर। ठीक है, तो फर्ज करें ये मेरा गaussian फिल्टर है जो मैंने कन्वॉल्व करना है। इसका 2D वर्जन कन्वॉल्व करना होगा ना। तो वो तो खैर आपको बेसिकली जो फिल्टर कमांड है वो आपको फिल्टर दे देगी जो आपने अप्लाई करना है। उसमें आपने सिर्फ सिग्मा बताना होता है। सिग्मा इज दिस वेरिएंस। वेल, रिलेटिव सिस्टम अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि सिग्मा का क्या मतलब है। तो फिर आपने लेट से एक ये कर लिया अप्लाई सिग्मा, फिर आपने लेट से एक ये अप्लाई कर दिया, एक ये अप्लाई कर दिया। जब आप इमेज को छोटा कर देंगे, लेट से मैंने आधा कर दिया इमेज को, तो अब ये देखें, ये तो बहुत बड़े फिल्टर है ना इस इमेज के लिए। इनकी तो लेंथ बड़ी है उससे। इनके लिए अलहदा से फिर हमें कोई सिग्मा वैल्यूज सेलेक्ट करनी होगी। यू गेट द पॉइंट? हर एक साइज के लिए यू कैन सेलेक्ट 4-5 वैल्यूज। यस सर। ठीक। So this is again a very important operation that we do in 3D modeling. Okay. उसके बाद this is another important representation that we will use. Maybe we will use in this course, but all the basic image processing pipelines they have this data structure. ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास हम हमारी we have taken over. Okay, so यहाँ पे आपको एक इमेज नजर आ रहा है और यहाँ पे ना एक सैंपल एग्जांपल भी दी हुई है। लेट्स से वी हैव अ 2D मैट्रिक्स ऑन द राइट। तो दिस वर्ड इंटीग्रल इमेजेस, इसका फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो लेफ्ट मोस्ट है ना। अगर मैं आपको कोई पिक्सल वैल्यू दूं ना, लेट्स से मैंने ये पोजीशन दी, उससे पहले जितनी वैल्यूज है ना कॉलम में भी और सम कर दिया जाए। तो वी नीड टू राइट अ फंक्शन विच डज दिस। देयर इज नथिंग स्पेशल। आपको रो और कॉलम बताया जाएगा और उस रो से पहले जितनी रोज हैं और उस कॉलम से पहले जितनी कॉलम्स हैं और रो से पहले जितनी रोज हैं, सारी वैल्यूज को सम कर देना। ठीक है, बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि यू कैन डू इट एफिशिएंटली। तो उसमें एफिशिएंटली कैसे होगा? हम पहले जो है ना दिस इज लाइक अ कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी। आपने जिस तरह कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की हुई है ना, you add the area under the curve till that probability, so that is cumulative distribution. तो इस cumulative distribution को बनाना ना बहुत आसान है। you can do it in single pass। वो सेकंड लाइन पे जो फॉर्मूला है ना वो आपको नजर आ रहा है। तो ये हम अप्लाई करते हैं ना, लेट्स से इफ वी हैव अ मैट्रिक्स। ये एक मैं एक और इमेज बना देता हूँ। So before I create this image, I was telling you that once upon a time, processing images in real time was something coveted. Really, people were trying to achieve real time processing of images. Till 2002, 2001, we did not have any image processing algorithm that could work real time on anything meaningful. For example, object detection. So for the first time, few researchers used this data structure
to process image in real time for face detection. You can go and search about Voila and Jones face detector. तो ये पहला टाइम था जो हमने कोई you can say we had lost faith in image processing. So these researchers provided the boost that with the current computing capabilities, you can do this. So this is one of the biggest achievements. The community was disheartened and they were trying, and algorithms were too computing intensive, and they showed कि नहीं ये real time हो सकता है. तो अब मैं ये मैट्रिक्स बना देता हूँ. But this is again, you will see a very simple operations. Let's say इस इमेज का क्या साइज है हमारे पास 4 क्रॉस 5. 4 क्रॉस 5. तो ये डिटेल ना इस विकिपीडिया पेज पे पढ़ी नहीं है, आप जाके देख सकते हैं. ये आ गया हमारा इमेज. ये आ गया हमारा फॉर्मूला. तो सबसे पहले ना हमने ये कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है. तो हम क्या करेंगे कि हम एक रिजल्ट मैट्रिक्स बना लेते हैं जिसका साइज यही है. लेट्स से यहाँ वैल्यू है 1. लेट्स से तो नाउ आई हैव टू कैलकुलेट कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन अप टिल दिस पॉइंट. वो क्या होगा अप टिल दिस? अगर कोई पिक्सल 1 दे आपको तो क्या वैल्यूज हैं अभी तक? अगर कोई कहे कि जी यहाँ तक की मुझे पहले पिक्सल तक की कम्युलेटिव बताएं क्या है? 1 है. 1 है. अच्छा लेट्स से यहाँ पे 5 है. तो ये दूसरे पिक्सल के एंड पे क्या कम्युलेटिव होगा? 6 हो जाएगा. तो इसी तरह अगर यहाँ पे 7 है तो अब क्या कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन होगा? अपने लिए मैं काम मुश्किल कर रहा हूँ. लेस देन 10 होना चाहिए. अच्छा चलें, यहाँ पे 2 हो गया. अगर लेट्स से यहाँ पे 2 है तो इस पिक्सल पे क्या रिजल्ट होगा? हमने कहा था कि अगर कोई आपको सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम दे दे तो दिस इज द पिक्सल पोजीशन ना. अगर कोई कहे कि जी यहाँ तक का बताएं तो क्या होगा? उस पिक्सल से पहले वाली सारी कॉलम्स और उस पिक्सल से पहले वाली सारी रोज. तो अब क्या रिजल्ट होना चाहिए? दिस इज 2. 3 हो जाएगा. गुड. तो ये हम कैलकुलेट कर लेंगे. तो जब हम ये कैलकुलेट कर लेंगे ना तो फिर हमारी जिंदगी बहुत आसान है. लेट्स से ओके. So the question in the class is कि what if somebody asks the cumulative value up till this point, this second row and third column. So we will sum up all these values. उससे पहले वाली जितनी रोज और उससे पहले वाली जितनी कॉलम्स. यही फॉर्मूला है ना. आप जरा लेफ्ट पे देखें. If I give you a pixel position, including that position, you add all the previous rows and all the previous columns. ठीक है. So you can convert a 2D matrix like this into this. ठीक है. This is easy. Okay. So what is the interesting thing about it? According to these researchers, they said that once you have these integral images, this is called the integral image. This is the integral image. यहाँ पे जो numbers है ना, you can take it as edges कि किस पिक्सल में edge है और किस पिक्सल में edge नहीं है. You can treat it image as a binary image.
किसी पिक्सल में एज है, किसी में नहीं है। बाइनरी के अलावा भी आप बना सकते हैं एजेस ऑफ डिफरेंट स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग एज, फेंट एज, हम देखेंगे वो एजेस को बाद में। तो आप ये जमा करके ना आप बता रहे हैं कि इस पिक्सल से पहले पहले कितने एजेस वाले पिक्सल्स गए हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम ट्राइंग टू डिटेक्ट अ वॉल, दीवार आप तलाश करना चाहते हैं, तो दीवार वाला रीजन क्या होगा, उसमें तो कोई एजेस नहीं होती, इट्स प्लेन। if all the pixels have no sum, then most probably it is a textureless object, and if the value is large, then it is a object with some texture. ठीक है, so this is how we will use this image. अभी हमारा काम सिर्फ इसको बनाना है। अच्छा, तो once you have this representation, तो image, अगर for example if somebody comes to you and asks you कि अच्छा मुझे ना सिर्फ इतने से पोर्शन का सम बता दें आप, क्योंकि दिस इज व्हाट वी डू विद इमेजेस। वी हैव एन इमेज और हम उसमें डब्बे बना के चेक करते हैं, इधर तो कोई चीज नहीं है, साथ वाले डब्बे में तो कोई चीज नहीं है, यही कर रहे होते हैं ना हम ऐसे बहुत सारे डब्बे बना रहे होते हैं इमेज में। तो वी वांट कि इस डब्बे का सम क्या है। तो उसको करने का इन्होंने आसान तरीका बताया हुआ है कि जब आपके पास ये इंटीग्रल इमेज आ जाएगा ना, तो ये जमा करना आसान है। फॉर एग्जाम्पल let's say you want to find the summation of this pink box. इस पिंक बॉक्स को जमा करें तो क्या रिजल्ट आता है, इन सारे नंबर्स को सम करें ना, तो मेरा ख्याल है नंबर आता है 111। इनको जमा करके देखें, 15 + 16 14 + 28 + 27 + 11, क्या रिजल्ट है। यही आता है, यही आता है ना। तो अब आप देखें कि आपने ये जब डब्बा देना है ना, आप कहते हैं कि सम बताएं आप, तो आपने बेसिकली 4 कॉर्नर्स बताने हैं, A, B, C और D, 4 उस डब्बे के कॉर्नर बताने हैं कि मुझे इस डब्बे का चाहिए। तो वो ये अकॉर्डिंग टू दीज रिसर्चर वो कहते हैं कि पहले आप A को यूज करके एक डब्बा बनाएं, उसका सम ले लें, B को यूज करके एक डब्बा बनाएं, उसका सम ले लें, C को यूज करके, D को यूज करके एक डब्बा बनाएं। 4 डब्बों की वैल्यूज आ जाएंगी, 4 कॉर्नर्स हैं और 4 कॉर्नर्स के कोरिस्पॉन्डिंग कम्युलेटिव इमेज में आपके पास 4 रिजल्ट हैं। ठीक है, तो फिर आप ये जब करेंगे ना, ये जो लास्ट पे फॉर्मूला है कि D और A को ऐड करें माइनस B और C को सब्ट्रैक्ट करें ना, तो आपके पास पिंक वाले डब्बे का रिजल्ट आ जाता है। ये जरा करके देख लेना, ये नीचे हमने सम किया हुआ है, ये D को जब दिया तो ये पूरा एरिया आ गया, इसे D का सम दिया हुआ है 450, ग्रीन ये है, ग्रीन वाला क्या हो गया, B वाला डब्बा हो गया ग्रीन, उसका सम है 254। ठीक है, तो नाउ यू गेट दिस लास्ट फॉर्मूला, करके देखें ना तो हो जाएगा, करें जरा जल्दी से। तो these A, B, C, D you are getting from the your desired box, जिसकी आप वैल्यूज पता चलाना चाहते हैं। तो वो बहुत आसान है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे फर्ज करें ये मैंने एक बॉक्स बनाया है ना, ये ब्लैक वाला हो गया, तो लेट से मेरा ये डब्बा है जिसका मैं रिजल्ट पता करना चाहता हूँ। तो मेरे पास 4 कॉर्नर्स हैं, तो पहले जो है ना, मैंने आखिरी वाला कॉर्नर अगर दूंगा इंटीग्रल इमेज को, तो ये ऑरेंज वाला डब्बा आ जाएगा। अच्छा, अगर अच्छा ये टॉप लेफ्ट कॉर्नर दूंगा तो ये वाला बॉक्स आ जाएगा। बॉटम लेफ्ट दूंगा तो ये वाला बॉक्स आ जाएगा, और टॉप लेफ्ट दूंगा तो ये वाला आ जाएगा। तो यू एग्री? ठीक है ना, तो इसमें देखें, ये जो मैंने 4 बॉक्सेस बनाए हैं ना, इसमें ये येलो वाला और ब्लू वाला बॉक्स माइनस हो रहा है ऑरेंज वाले में से ना,
तो 2 दफा ये वाला रीजन 2 दफा माइनस हो रहा है, इस वजह से फिर हमने ये रेड वाला बॉक्स ऐड कर दिया ऑरेंज वाले बॉक्स में और ब्लू और येलो माइनस कर दिया। ठीक है, तो इस तरह ना हमारे पास इस पूरे डब्बे में जो भी आप उस इमेज में जो भी चीजें थी ना, इस डब्बे का सम आ जाएगा हमारे पास। इस वजह से हम इसको इंटीग्रल इमेज कहते हैं। अच्छा, तो ये तेज, हाउ डज इट मेक प्रोसेसिंग फास्ट? ये तो डेटा स्ट्रक्चर है ना एक, ये जल्दी कैसे हो जाता है? ये जल्दी ऐसे हो जाता है कि कैलकुलेट करने का फॉर्मूला दिया हुआ है सेकंड रो में। अगर आप खुद बना रहे हैं ना ये इंटीग्रल इमेज, तो यूज द फॉर्मूला इन द सेकंड रो। तो कैसे आप बनाएंगे? आप ये देखें, मैं यहाँ बना कर दिखाता हूँ आपको। ये आपका इमेज है। तो सबसे पहले ये वाली वैल्यू आई, आपने इमेज में से ना एक्स वाई की वैल्यू कैलकुलेट की, फिर उस, और ये 3 वैल्यूज नहीं है अभी आपके पास, ये आई वाली वैल्यूज नहीं है आपके पास, राइट? आई वाली बनाने जा रहे हैं ना आप। कैपिटल आई इज द इंटीग्रल इमेज, यू हैव द ओरिजिनल इमेज। तो आपने एक्स वाई एंटर किया ना, तो आपके पास ओरिजिनल वैल्यू तो डायरेक्टली आ गई, इसके लिए कोई प्रोसेसिंग नहीं करनी पड़ी। ठीक है, तो जब लेट्स से इसका एक्स 1 है और वाई 1 है, एक्स भी 1 है और वाई भी 1 है, इन बाकी 3 जो वैल्यूज हैं इनके क्या आर्ग्यूमेंट्स क्या बनते हैं? 0 हो जाएगा, x -1 y -1। ठीक है, तो जब 0 हो जाए तो वी डिस्कार्ड, वी डोंट नीड इट। तो ये तीनों टर्म्स हमारी 0 हो जाएंगी और वी विल प्रोसेस दी, मतलब डायरेक्टली हमारे पास रिजल्ट आ गया पहले वाले का। अब आप दूसरे पिक्सल पे जाएं। जब आप दूसरे पिक्सल पे जाएंगे तो और x is 1 एंड y is, या एक कोऑर्डिनेट 1 है और दूसरा 2 हो गया। इनमें से कोई एक टर्म जो है ना, वो इनमें से कौन सी टर्म है जो नॉन जीरो है इन 3 इंटीग्रल इमेजेस वाली टर्म्स में से? अगर आप x को कह रहे हैं पहला कोऑर्डिनेट, तो कौन सी वाली टर्म 0 है? x is 1 एंड y is 1 के लिए अभी मैं यहाँ लिखने की कोशिश करता हूँ ना। I is available already. It is the second column. Let's say we follow the convention of MATLAB and Python के columns are x. ठीक है, तो इस पिक्सल में क्या होगा? x is 2 and y is 1. This is the convention. तो ये वाली वैल्यू तो हमें डायरेक्टली मिल जाएगी। फिर हमें क्या वैल्यू चाहिए? एक वैल्यू हमें चाहिए आई वाली, x is 2 and y is 0। ये जो सेकंड टर्म है इधर, ये मैंने लिख दी। ठीक है, तो 0 वाली तो इररिलेवेंट टर्म है ना, 0 वाले को तो हम वैसे ही छोड़ देंगे। फिर नेक्स्ट वाला देखें, x i of x -1 एंड y, तो ये क्या होगा? x -1 is 1 and y is y। तो i 1 तो आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं ना, ये आप कैलकुलेट, ये फिल करके आगे आए हैं, तो ये आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, इसके लिए दोबारा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। और ये जो थर्ड टर्म है i x -1 y -1, इट इज ऑल्सो, इनमें से कोई एक 0 हो जाएगा तो इररिलेवेंट हो जाएगी, तो ये सेकंड वाली भी आपके पास आ जाएगी। you use the result of the first computation to get the second, और फिर इसी तरह आप चलते जाएंगे। थर्ड वाले में ये होगा कि अप टिल सेकंड आप कैलकुलेट करेंगे, फिर फोर्थ, फिर ये, और फिर इस तरह जो है ना, ये इस तरह आप चलते जाएंगे। तो वो इससे पहले वाले जो भी पिक्सल्स हैं वो आपने कैलकुलेट कर। फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं, इस वाले पिक्सल की, इसमें क्या होगा? इसमें ये वाली वैल्यू चाहिए ना हमें, ये वाला डब्बा बनाने के लिए, वो पहले से है। तो दिस इज कॉल्ड सिंगल पास
प्रोसेसिंग, इमेज में एक ही दफा में गुजरना पड़ा है सारी वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए. So this was the interesting thing. Once upon a time, everybody wanted to work with integral images. Integral images was the hot topic. ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ. Propagation was very difficult. This is easy. मैं आपको दिखाता हूँ. ये देखें, ये मैंने विकिपीडिया का पेज खोल लिया है. तो आई विल शो यू समथिंग इंटरेस्टिंग. ये जरा पढ़ें, इसमें पहला ऑथर कौन है. अब पढ़ें. फैसल शवायत. तो ये 2008 की बात है या 2007 की बात है, मुझे याद नहीं है. Once upon a time, everybody wanted to work with integral images. आप कुछ कर रहे हैं ना, आप कहते थे how can I use integral images. Today everybody works with मशीन लर्निंग. नहीं, डीप लर्निंग. गलत जवाब है, ये जीरो आंसर. So anyways, maybe in future another application comes up where you use this data structure. So I mean, the point is we might not use integral images, but you should know when somebody says integral image, तो उसके बारे किसके बारे में बात होगी. तो एक ये आपने काम करके देना है, और एक काम आपने यही मैट्रिक्स ले लेना और यही इंटीग्रल इसके कैलकुलेट करें. और एक फंक्शन आप लिखेंगे, उसको 4 कॉर्नर्स आप देंगे, 4 पोजीशंस बताएंगे, और उन 4 पोजीशन के बीच में जितनी वैल्यूज हैं उनको वो सम कर देगा. तो लेट्स सी हुज कोड इज मोर एफिशिएंट. कौन कम टाइम में इंटीग्रल इमेज कैलकुलेट करता है. यही सारी रिसर्च थी इन इमेज प्रोसेसिंग. वंस अपॉन अ टाइम एवरीबॉडी वांटेड टू कंप्यूट इंटीग्रल इमेजेस फास्टर देन द अदर वन. और उसके बाद ना एक मैं आपको सिंपल एग्जांपल दे देता हूँ, एंड दैट्स अबाउट इट. अब हमारे पास और टाइम नहीं है आज. आई विल शेयर दिस असाइनमेंट. यू हैव कपल ऑफ वीक्स टू सॉल्व इट. डू इट योरसेल्फ. वाइवा होगा, और आई होप यू मैनेज टू डू इट. अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि ये वाला इमेज जो है ना, आप मुझे बनाकर दिखाएं, बनाएं और प्लॉट करके दिखाएं पाइथन में वो जो एक्सरसाइज की है. तो मैटलैब में मैंने आपको ये कोड दिया हुआ है, कैसे होगा ये मैं यहाँ दोबारा बना के दिखा देता हूँ. ठीक है, पहले मैं ना एक एम्प्टी इमेज बनाता हूँ. It has 4 rows, it has 4 columns, and we know that image has 3 channels. अभी सारी वैल्यू 0 है. फिर मैं क्या करता हूँ, एम्प्टी इमेज में ना first 2 columns, first 2 rows, ये जो ऑपरेशन मैंने किया है इससे क्या हुआ है. You have used MATLAB, right? Everybody has used MATLAB. ये क्या हुआ है सर, आपने एक 4x4 की 3 चैनल इमेज बनाई है जो कि एम्प्टी है, और फिर आपने उसके एक स्पेसिफिक एरिया को वाइड कर दिया. वाइड कर दिया है. चलें अभी देखते हैं वाइड किया कि नहीं किया. अब क्या किया मैंने, मैं आपको दिखा देता हूँ. ये मैट्रिक्स बनी है फाइनली जो मैंने बनाई है. ये मैं बनाना नहीं चाहता था, 12 से करूँगा. तो भी ठीक है, लेकिन आई वांटेड टू मेक
ये है जी, ठीक है। और अब जो है ना मैं शो करता हूँ इसको, व्हाट इज इट। तो अगर आप ये मैट्रिक्स देखेंगे ना, तो पहला पिक्सल है उसकी वैल्यू है 255 इन दी फर्स्ट चैनल, सेकंड चैनल में 0 और थर्ड चैनल में 0। इमेज बनता है RGB से, तो सिर्फ R है। 255 इज द हाईएस्ट वैल्यू इन 8 बिट्स। अगर 8 बिट्स पर पिक्सल है ना आपके इमेज में, तो 255 इज द हाईएस्ट वैल्यू। तो 25500 मींस रेड। 0, ये अब आप इसका देखें, ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो इसकी क्या वैल्यू है? पहले चैनल में 0, दूसरे में और तीसरे में। सो 0 255 0, इट इज व्हाट? रेड ग्रीन ब्लू, ये ऑर्डर होता है ना, तो ये ग्रीन हो जाएगा। और फिर ये सारी जीरोज हैं आखिरी 2 रो, तो ब्लैक हो गया, ठीक है। तो इसी तरह आपने एरे बनानी है विद दीज वैल्यूज। you have to convert it into image और then display it। यही वाला इमेज आपने बनाकर दिखाना है, ठीक है। तो this is your first assignment. We will discuss more about this image formation. So but you can already start doing the other examples. ये मैं Teams पे अपलोड करूंगा क्योंकि LMS is not working। अच्छा चलें, ये हमने काम कर लिया। अब before we finish the class, actually I have just one simple question from you and then we finish the class. So now we need to understand the filters and the operation. Okay. This is the operation that will form the convolutional neural networks. ठीक है, तो जो ज़्यादा इंटरेस्टेड है ना न्यूरल नेटवर्क्स में, तो वी वांट टू अंडरस्टैंड कॉन्वोल्यूशन। ये मैंने एक सिग्नल बनाया है और ये मैं दूसरा सिग्नल, और अब मैं तीसरा सिग्नल बनाऊंगा। So my question to you is, which two are similar, more similar than the other? रेड और ग्रीन सिमिलर हैं कि रेड और ब्लू सिमिलर हैं? ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर विजुअल सिस्टम रेड और ब्लू सिमिलर है। सो नाउ फॉर्मूला दैट रेप्लिकेट्स दिस रिजल्ट। ठीक है, ये हम फॉर्मूले में अगर लिख लेंगे ना, तो वी कैन यूज दैट फॉर्मूला टू फाइंड सिमिलर थिंग्स। यही हमने इमेजेस में करना होता है, हमें कुछ एग्जांपल्स पता होती हैं, उस जैसी हमने तलाश करनी होती है। तो वी नीड टू राइट दिस which your eyes just did. We want some sort of formulation. तो बेसिकली जो हमने किया है ना, आपने पॉइंट मल्टीप्लाई, आपने दो सिग्नल थे आपके पास, P और Q कह देता हूं मैं उनको, तो आपने उनको मल्टीप्लाई किया है और उनको जमा कर दिया है। दिस इज व्हाट योर आईज डिड। ये किया आपकी आंखों ने काम। कैसे? देखिए, आपने रेड और ब्लू को ज्यादा सिमिलर कहा ना, इनका ज्यादा सिमिलर हम एक नंबर से बता सकते हैं। रेड और ब्लू को ना पॉइंट बाय पॉइंट मल्टीप्लाई करें आप। इधर रेड पॉजिटिव है, उधर ब्लू पॉजिटिव है, तो प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, और जिधर रेड नेगेटिव है उधर ब्लू नेगेटिव है, रिजल्ट सारे पॉजिटिव हैं, इनको जमा कर देंगे आप। अब आप रेड और ग्रीन को करके देखें,
तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव है, लेकिन कुछ जगह ऐसी आती हैं जहां एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ये समेशन में से चीजें माइनस हो रही हैं। मे बी दिस मेक सेंस, ठीक है। तो ये जो ये वाली चीज जब भी आप देखेंगे ना इंजीनियरिंग में या कहीं पे भी, दिस इज व्हाट यू आर डूइंग। ये जो summation of product, summation of product is what for us? It is finding similar things. हम चाहते हैं कि P जैसी चीज कहाँ पे है। we can compare it with Q, we can compare it with Z, we can compare it with another signal, और फिर जिस चीज का ये नंबर कम होगा ज्यादा होगा वो similar to P है, ठीक है। ये कंटिन्यूस सिग्नल में आप करते हैं तो जो डिस्क्रीट डोमेन होती है उधर ये चीजें चेंज हो जाती हैं, ठीक है। खैर उधर भी आप तो कॉन्वोल्यूशन में आप लोग क्या करते हैं? कॉन्वोल्यूशन में भी इसी तरह के फॉर्मूलाज होते हैं आपके पास, बस सर एक चीज सर बस उसमें एक सिग्नल शायद फ्लिप होता है बस। हाँ, मतलब अगर उसमें फर्ज करें हम रेड और ब्लू में सिमिलैरिटी फाइंड आउट में से एक को क्या करेंगे, फ्लिप कर देंगे ना, फ्लिप कर देंगे, ठीक है। तो अब मुझे ना आप एक सिग्नल को फ्लिप करके दिखाएं। ये एक सिग्नल है, इसको फ्लिप करें जरा। तो अगर फ्लिप करने के बाद चेंज नहीं होता तो फ्लिप करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो फॉर्मूला कॉन्वोल्यूशन का, ऑल दैट कॉम्प्लेक्स थिंग, एक को फ्लिप करो और स्लाइड करना शुरू कर दो। तो दैट इज व्हाई फॉर अस कोरिलेशन एंड कॉन्वोल्यूशन आर नॉट डिफरेंट। हमारे लिए फर्क नहीं पड़ता, अगर उनमें से जिस चीज को फ्लिप करना है वो सिमेट्रिक है तो हमें फर्क नहीं पड़ता कॉन्वोल्यूशन करें या कोरिलेशन करें। तो we will see next week, we will discuss few filters. We want to discuss a Gaussian filter, we want to discuss Laplacian filter. Why is it so important for us? Okay, so that is it for this week. Any question? Okay, so the question in the class is, are these filters used for calculating the sharpness? We use these filters for everything. Filters is what we apply on images. Object detect करना है तो filter, blur detect करना है तो filter, feature detect करना है तो filter. तो filtering से ही सारे काम होते हैं, ठीक है। और आप लोगों ने जब DSP पढ़ी थी ना, आपने पढ़ी होगी, तो आप फिल्टर को सिमेट्रिक बनाते थे शायद, फिल्टर कोफिशिएंट्स नहीं बनाते थे, सिमेट्रिक नहीं बनाते थे, उसके टैप्स ऑड रखते थे। of the impulse response was even नहीं होते थे, ऑड होते थे। क्यों रखते थे ऑड? ये अब आपने पढ़कर आना है अगली दफा, ठीक है। अब हम लीनियर अलजेब्रा हमने टेस्ट कर लिया है, अब हम सिग्नल प्रोसेसिंग आपकी टेस्ट करेंगे। सर वो ताकि जब फ्लिप करें तो वो एक ही पॉइंट के राउंड फ्लिप हो, नहीं तो सिमेट्रिक अगर इवन हो तो भी फ्लिप हो जाए तो भी एक ही पॉइंट के फ्लिप होता है। मुझे नहीं, वो सर जो सेंटर पॉइंट है वो तो ऑड में ही होगा ना। मतलब ये डब्बा है, इसको फ्लिप करूंगा तो क्या होगा? ये डब्बा ही रहेगा। सर डिस्क्रीट में जब हम कर रहे होते हैं तो फिर तो सिर्फ इंटीग्रल वैल्यूज आएंगी ना, तो वो उस केस में फिर ऑड में ही वो रहती है। अच्छा, आप ये ठीक कह रहे हैं आप, आई एग्री विद यू, बट हैविंग ऑड फिल्टर कोएफिशिएंट्स had another reason, where that was what you were studying while you were studying digital signal processing. आपने फिल्टर डिजाइनिंग की हुई है, अब आपने मुझे अगले हफ्ते आगे बताना है कि फिल्टर कोएफिशिएंट्स ऑड क्यों थे, या मुझे कह दें कि नहीं ऑड नहीं थे, इवन भी थे, तो आई विल एग्री विद यू, ठीक है। चलें, ओके जी, थैंक यू।